Yes, thanks. Thank you, Jesus. Hallelujah. This is the first Sunday of this year, and we thank God for this year. We praise Jesus for this time and this hour that God has given us. Hallelujah. Let's close our eyes and let's thank the Lord for this time. And let me also speak that there is a few minutes of praying and praying in the spirit, and after that we will go with the word of God that will be given by Sister Sarah, and then later on we will take on personal prayer requests, and then if there is any testimonies that needs to be shared, we can be sharing after that, and then we'll go with the end of this session. So thank God for this day. Thank you, Jesus, for this time. Thank you, Lord, for everyone who's present here, Lord. I pray for each one of them, Lord Jesus. You cover them with your precious holy blood. And Lord, we pray that you will lead them throughout this week, throughout this day, Lord Jesus. Bless them, Lord. Bless their families. Bless their children, Lord. Every member of this family, Lord. We commit them into your holy hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom to all in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Glory to God. This is the first Sunday of 2022. It's been an immense joy for each one of us to enter this year with the promises and word of God. Right? We all were together on the 31st of 2021, and we all received the word from God. And today is a Sunday where God is going to give us more prophetic words, which the Lord had laid in our hearts in 2021. So today's meeting is a very special meeting, and I would want each one of you to be prepared in your hearts to receive from the Lord. Hallelujah. So for a few minutes, we will speak in tongues and prepare ourselves to receive what the Lord has to speak to us through the Word of God. Hallelujah. So let's all close your eyes and just thank the Lord for a few minutes for His faithfulness. Hallelujah. धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हुए इस 2022 के साल में परमेश्वर ने हमें एकदम आशीषित तरीके से लाया है, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। Thank you, precious Master, that it's because of your faithfulness, Lord, that we have entered 2022, Master. It's because of your loving kindness, Father. Today we have seen this morning, Lord, Father. Master, we surrender ourselves into your holy hands, Lord, that your precious holy blood covers us, Master, and it protects us, Father. Holy Spirit, lead us, guide us, instruct us, teach us, Master, that how we have to continue the course of life on this earth, Abba Father. Master, I give this session into your hands. The Holy Spirit will lead us, prepare us, and guide us, and will teach us as per the word of God. We ask forgiveness, Master, that if we have offended or been hurt or wounded in our hearts by any reason, Master, that you will cleanse and wash everything, Master, which is a burden in our hearts, and uplift that burden and make our hearts pure and clean, that we may receive the word of God, Lord, that we may not be only listeners but the doers of the word. Father, even in our weaknesses, Master, you are the present help and you are my strength and my shield, Lord. I give you all glory, honor, and praise. And in Jesus' mighty name we ask and pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर ने पिछले साल जब हम 7 दिन की उपवास प्रार्थना में थे, परमेश्वर ने कुछ ऐसे मैंडेट या एजेंडा हमें दिए जो कि अब समय है उसको फुलफिल करने का। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देती हूँ कि कल शाम जब हम आज के मैसेज के लिए तैयारी कर रहे थे तो परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, ऐसे इंस्पिरेशन दिया। तो आज हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं बाइबल से, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन होगा उस वचन का, क्योंकि ये साल जो है, जो प्रॉफिटिक ईयर हमें जो मिला है वो ग्रेटर विजन का है। हालेलुया। तो जो 31st के सर्विस में नहीं थे वो वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, यू कैन चेक मे बी टुडे इवनिंग।
So without wasting much time, let's get back to the word. So today we are going to read from the book of Revelation. प्रगटीकरण की किताब से आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अध्याय और 7वें वचन से. हालेलुया. We are going to be reading from the book of Revelation, chapter 3, from verse 7 onwards. Before that, I begin, I just want to give you all a brief understanding that why are we, taking this reading of the word from the book of Revelation. As I said earlier, it was the 7 days fasting in 2021. When on the seventh day of fasting, when we were praying, God put into our hearts about Philadelphia Church. And that time we were not much aware of how these things are related to us. And then we were celebrating the first anniversary of Adonai Kingdom Planters. It was through man of God, Smith Wayne. Even he prophesied that Adonai Kingdom Planters is based on the pattern of Philadelphia Church. So this was a greater inspiration for us. And today I want to share you what the Lord put in our hearts. So before I begin with the word, there is a little of background to this word which is going to be shared. So the historical approach to the seven churches of Revelation is useful because when we read Revelation chapter 3 onwards, there are different churches which are being explained here. बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है. पर हम क्यों सिर्फ फिलाडेल्फिया चर्च को आज चुन रहे हैं? क्योंकि ये एक रेमा वर्ड की तरह हमें 7 दिन की उपास प्रार्थना में दिया गया वचन है. हालेलुया. सो आज का जो वचन का टाइटल जो है वो है ओपन डोर्स. परमेश्वर नए द्वार हमारे लिए, आपके लिए खोल रहे हैं. तो जितने भी आत्मा में परमेश्वर से कनेक्टेड है उस इस वचन को रिसीव कीजिए. हालेलुया. So as I'm sharing the word, keep your hearts receptive and keep on receiving the word of God. Don't wait for others because you are the person who is responsible for your own life. Hallelujah. So थोड़ा सा हिस्ट्री में हम देखेंगे कि हम फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में क्या जानकारी इस वचन से देख सकते हैं. So the historical approach to the seven churches of Revelation is useful because we see a lot of histories evolving around these churches, right? We also see in Revelation chapter 2, verse 25, 3, verse 3, 3 and 11, the return of Jesus Christ. Hallelujah. So these are the scriptures which gives us a strong assurance that the second coming of Christ is near. Hallelujah. So it is good to remember that all these letters and prophecies which were written had a very significant impact. Hallelujah. So why we are reading Philadelphia Church today, as I shared the importance of why. So we must remember that every church and every letter written to the church in this book of Revelation is very important. But we have received a Rhema word for Philadelphia Church. That is why we are studying about this church today. As the Lord leads in the coming days, we will also study about all other churches written in the book of Revelation. Hallelujah. So we need to hear what the Spirit says to the churches. Hallelujah. So Philadelphia in the midst of 1700 to the present, 18th and the 19th century revival was happening in Philadelphia. And the strongest point of this church is it was expecting very honestly the return of Jesus Christ. Hallelujah. So I am reading from the 7th verse. We are trying to understand here the character of this church. Hallelujah. So when I talk of Philadelphia church, you can always keep Adonai Kingdom Planters in front of your eyes and consider yourselves where we stand when we learn about this church, right? So let's read the 7th verse. And the And the angel of the church in Philadelphia write. So this is what it says. Philadelphia means brotherly love. Philadelphia का meaning है भाईचारे वाला प्रेम. This city was the youngest of the seven cities and was originally founded as a missionary outpost for Hellenism. Hellenism ये एक culture है ancient Greece का, relating to Greek history, culture and art after the अलेक्जेंडर द किंग, राइट? तो हेलेनिज्म ये प्राचीन यूनानी का जो एक संस्कृति माना जाता है.
तो इसके दौरान जो फिलाडेल्फिया चर्च का जो ओरिजिन हम जब पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानकर ही आगे बढ़ेंगे. The original purpose behind this key city was to make it a center for spreading Greek language. इस शहर का जो मेन जो एक मकसद था कि यूनानी भाषा और उनकी जो कल्चर है वो सारों को वहां पर फैलाना, ये इसका मकसद था. Philadelphia had been built with deliberate intention that it might become a missionary city, and it was intended that the function of Philadelphia should be spread the Greek language. Right? यही उनका पहला मकसद था. The city gains its name after its founders, Atlas II, who was nicknamed Philadelphus. तो ये शहर का नाम एटलस द सेकेंड, उनके निक नेम से इसको ये नाम मिला था. तो फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में ये सारी हिस्ट्री की चीजें हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आगे चल के जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी. हालेलुया. फिलाडेल्फिया कमांडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईवेज इन द वर्ल्ड. इस शहर का जो अगर हम इसकी विशेषताएं को अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े हाईवे थे उस जमाने में, पूरे जो उनके नजदीक जो शहर थे उनसे कनेक्ट करने के लिए. Highways which led from Europe to the east. Philadelphia was the gateway from one continent to the other. Philadelphia is also known for beautiful buildings. It is also known as Little Athens. ये शहर बहुत ही सुंदर माना जाता था और लिटिल एथेंस के नाम से भी जाना जाता था. पर दूसरा अगर पहलू अगर हम फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में देखेंगे तो इस जगह पर, इस सिटी में बहुत सारे भूकंप आते थे, earthquakes, which required frequent evacuations. आप सोचकर देखिए अगर एक जगह पर ज्यादा भूकंप आता है तो वो परमानेंटली एक घर का स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रह सकते. Their lifestyle has to be temporary. उनका कल्चर ही ऐसा था कि वो एक इमारत जो स्टोन से बनी है या पत्थर से बनी है ऐसे वाली इमारत में वो नहीं रह सकते क्योंकि वो जमीन की खासियत यही थी कि वहां पर हमेशा भूकंप आते थे. Earthquakes were very prominent in Philadelphia. Why are we reading this history? Because once you start with the word, you will understand and you will recollect the history of this church is very important. Hallelujah. So I'm reading the word 3 verse 7. These things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. So let's read in Hindi from Revelation 3 verse 7 in Hindi. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखा, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई खोल नहीं सकता. उसका संदेश इस प्रकार है. जब हम वचन में पढ़ रहे हैं ये दावीद की चाबी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है. These things says he who is holy. तो अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं. हमने हिस्ट्री पढ़ा, अब हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर इस वचन से एडोनाई किंगडम प्लांटर्स मिनिस्ट्री के लिए और सभी जो लोग इससे जुड़े हैं उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं. These things says he who is holy, he who is true. Jesus reminded the church in Philadelphia that he was holy and true. यीशु मसीह सिर्फ पवित्र, अति पवित्र और सत्य है. हालेलुया. ये सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शा रही है ये बताती है कि केवल और केवल यीशु मसीह ही पवित्र और सत्य परमेश्वर है. This also shows us that Jesus is Yahweh because he alone is holy in an absolute sense. परमेश्वर यीशु मसीह ही याहवे है. याहवे ये परमेश्वर का नाम जो है हम पुराने नियम में पढ़ते हैं जो कि यहोवा भी कहा जाता है. हालेलुया. There are two ancient Greek words that we might translate. यहाँ पर ट्रू ये जो शब्द है इसका हम ट्रांसलेशन यहाँ पर पढ़ेंगे. One means true and not false. इसका मतलब सत्य ही है. परमेश्वर सत्य और अति पवित्र है. इसमें कोई भी मिलावट नहीं या इसमें कोई भी फेक चीज नहीं. The ancient Greek word used here for true is althenos. एल्थिनोस ये शब्द जो ग्रीक ट्रांसलेशन से लिया गया है इसका मतलब है सत्य, रियल और जेन्युइन. जीसस इज ट्रू इन ऑल ऑफ हु ही इज.
He is the real God and the real man. We all know that when Jesus Christ came on this earth, he was 100% God and 100% man. Hallelujah. He who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Jesus showed he is also the keeper of the keys and doors. इस वचन से हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह के पास और सिर्फ उन्हीं के पास ये अधिकार है। ये वचन हम ईशा नबी की किताब 22वें अध्याय 20 और 20 से लेकर 20 to 23 में भी हम पढ़ते हैं। इसका रेफरेंस है ईशा नबी की किताब 22 from 20 to 23. We're not reading now, just for reference sake. This verse is also quoted there. Jesus expressed his power and authority, especially to admit and exclude. Hallelujah. तो ये जो अधिकार है किसी चीज का या इस दरवाजे को खोलने का या बंद करने का, और ये चाबियों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो ये वचन में हम देखते हैं 7वें में कि परमेश्वर यीशु मसीह किस तरह से पवित्र, अति पवित्र और सच्चा परमेश्वर है, और जिसके हाथों में दावीद के राज्य की कुंजी है। हालेलुया। अगर वो किसी चीज को खोल दे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, अगर वो किसी चीज को बंद कर दे तो उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। 8वें अध्याय में पढ़ते हैं What Jesus knows about the Church of Philadelphia. परमेश्वर यीशु मसीह, स्टार्टिंग में हमने वचन शुरू करते समय लिखा यीशु मसीह का जो फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में क्या विचार है, ये हम देखते हैं। This is a complete report which Jesus Christ himself is giving about this church. Hallelujah. I know your works. See, I have said before you an open door. This is direct speech, which is Jesus talking to the Philadelphia church. And no one can shut it, for you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Let's read in Hindi, Revelation 3:8. यस, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Hallelujah. Thank you, Father. So let's see. I know your works. See, I have said before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. I know your works. यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? Jesus said this to each of the 7 churches. अगर हम सारे 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह डायरेक्टली इनको एड्रेस कर रहे हैं। पर फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में क्या कहा जा रहा है? The church at Philadelphia had served God well in difficult circumstances and Jesus knew it. सबसे महत्वपूर्ण बात हम फिलाडेल्फिया चर्च के बारे में ये देख रहे हैं कि ये कलीसिया जो है इसने हर एक परिस्थिति में, चाहे वो आनंद की परिस्थिति हो या कमी घटी की परिस्थिति हो या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में क्यों ना जाते हो, ये चर्च जो है ये विश्वासु रहा है। The church at Philadelphia had served God well in difficult circumstances. Hallelujah. ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया को इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। हालेलुया। I know your works. मैं तुम्हारे कार्यों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि हम सब ये बात को जानते हैं। हमारे अंतःकरण को सिर्फ कंप्लीटली जानने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। I have said before you an open door and no one can shut it. The church in Philadelphia had an open door set before them. ये सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया चर्च के लिए दिया कि उसके सामने एक खुला द्वार रखा गया है। हालेलुया। Often an open door speaks about evangelistic opportunity. सुवार्ता को देने वाली एक अपॉर्चुनिटी के बारे में कलीसिया को यहाँ पर एक शुभ संदेश दिया जा रहा है। Let's read 1 Corinthians 16 verse 9. I'm reading it. It says 1 Corinthians 16:9, for a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. यहाँ पर फिर से एक द्वार के बारे में कहा गया है। इस वचन में हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक द्वार को खोला गया था। 2 Corinthians 2:12, दूसरा Corinthians 2:12 में हम पढ़ते हैं
Furthermore, when I came to Taurus to preach Christ's gospel, and door was opened to me by the Lord. यहाँ पर फिर से एक द्वार के बारे में कहा गया है। और तीसरा वचन है कोलोसियंस की किताब 4 और 3 का। I'm just reading in English because of time constraint. Colossians 4:3. Meanwhile, praying also for us that God could open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, which also I am also in chains. यहाँ पर हम 3 जगहों पर देखते हैं द्वार के बारे में कहा गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि परमेश्वर की ओर से अगर आपके लिए सेविकाई करने का एक द्वार खुला गया है तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। एडोनाई किंगडम प्लांटर्स ये हमारे मन का विचार या हमारा प्लान पर्पस नहीं, पर परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ एक मैंडेट और एक एजेंडा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार 2020 में खोला। सेविकाई करने का ये जो एक अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में दिया, इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं। और यही द्वार आज परमेश्वर आपके लिए 2022 में खोल रहा है। I do not know how many of are receiving it, but this is the prophetic word for you all in this 2022. Hallelujah. परमेश्वर आपके लिए ये द्वार इस साल में खोल रहा है, क्योंकि पिछले साल जब हम उपवास प्रार्थना में थे, परमेश्वर ने हमारे पास ये सारी चीजों का एक रेमा वर्ड के रूप में हमसे बात की। Hallelujah. So let's read. Jesus told them he had opened the door of evangelistic opportunity, that they must go through that door in faith. इस द्वार को अगर आपको एंटर करना है तो विश्वास के साथ ही करना पड़ेगा। हमने फिलाडेल्फिया के इतिहास के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? ताकि हम जान सके इसका जो पार्श्वभूमि है, इसका जो बेसिस है, ये किस तरह का है। फिलाडेल्फिया हैड अ ग्रेट इवेंजलिस्टिक कॉलिंग। ये चर्च फिलाडेल्फिया के ऊपर एक महान एक बुलावट जो है प्रचारक के रूप में यीशु मसीह के द्वारा दी गई थी। The city had the mission of spreading Greek culture and language through the whole region. हमने इतिहास में पढ़ा कि ये जो प्राचीन काल का जो शहर था, इसमें यूनानी भाषा और उसकी जो कल्चर है, उसकी संस्कृति को स्प्रेड करने का कार्य बहुत अधिक तेजी से चल रहा था। पर यीशु मसीह के ये संदेश के बाद में क्या परिवर्तन आया? Now Jesus opened the door for the Christians of Philadelphia to spread the culture of his kingdom through the whole region. Hallelujah. पर प्रभु यीशु मसीह के इस नए द्वार खुलने पर फिलाडेल्फिया सिर्फ यूनानी भाषा और उसकी संस्कृति फैलाने का काम में नहीं रहा, पर उसके राज्य और उसकी कलीसिया को बढ़ाने में मतलब बोलते हैं जैसे it became very desperate and full of zeal. It started to function day and night to spread the culture of his kingdom through the whole region. Hallelujah. Are we all happy? Are we all receiving it? Right? Yes, many people are receiving. Thank you, Jesus. Because when I see you people receiving, I feel encouraged to move ahead. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, So amen. it's a great joy that God has given us to receive from the Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हर एक जन के लिए कुछ ना कुछ बुलावट रखी है, पर हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बुलावट क्या है। हालेलुया। तो इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने एक द्वार वहां के मसीहों के लिए खोला, ताकि फिलाडेल्फिया जो उसके संस्कृति और उसकी यूनानी भाषा को प्रसिद्ध करने के लिए जानी जाती थी, पर आज प्रभु यीशु मसीह के सुवार्ता को सुनाने के लिए जानी जाती है। हालेलुया। दैट इज देयर आइडेंटिटी टुडे। हालेलुया। Jesus told them to see that they had this open door. Sometimes God sets an open door for evangelistic opportunity in front of us, but we don't see it. बहुत बार परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलते हैं कि किसी भी छोटे से माध्यम से क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करें। यहाँ पर एक कमेंटर ये कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके राज्य के लिए मैं सेविकाई करूं, कैसे मैं आत्माओं को जीतूं। तो उन्होंने उत्तर दिया, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, आप कौन हो, आप क्या करते हो। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो एक ट्रेन में जो कोयला जो डालते हैं उसका काम मैं करता हूँ। और अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है, और फिर तुम्हारे साथ वहां पर कौन साथ में रहता है? तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे और दूसरे कलीग्स भी वहां पर होते हैं। ओके,
तो इज द मैन हु शॉवल्स कोल ऑन योर ट्रेन अ क्रिश्चियन? उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ जो काम करता है, तुम तो एक इंजन ड्राइवर हो और तुम्हारे साथ जो कोयला डालने वाला जो काम करता है, क्या वो मसीह है? तो इस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता कि कहीं वो मसीह है, क्रिश्चियन है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ये कमेंटेटर ने कहा ठीक है, फिर से जाओ और उसी से ही शुरुआत करो, गो बैक एंड फाइंड आउट एंड स्टार्ट ऑन हिम। तो हमें कोई बाहर जाकर किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले हमारे घर से ही हमें शुरुआत करनी है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति ने कहा कि मैं किसके पास जाकर सुवार्ता बताऊं? तो हमारे सरकमफरेंस में, हमारे सर्कल में जो कोई भी है, हमें सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना है, कहाँ और कब हम मसीह के बारे में उन तक ये शुभ संदेश पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। वेयर कैन वी बी अ vessel or an instrument that we can share the word of God? Once we see the open door, we then have to walk through it. जब कभी भी हमने ये खुला द्वार देख लिया या इस खुले द्वार को जान लिया, हमें ये बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इस बारे में कि जब कभी भी हम महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खुला द्वार रखा है, तब हमें विश्वास से उसे एंटर करना है। देर the only thing that we can do is that we have to walk through it through faith. God wants us to take every evangelistic opportunity that He gives us. हमें आज 2022 में ये बहुत दृढ़ निर्णय लेना है कि हमें इस खुले द्वार को समझना है। We have to be sensitive to understand that God has opened a door for you and me. Hallelujah. This is what the word of God says. Another meaning to this open door is that the Christians in Philadelphia were excluded from the synagogue. हम आने वाले वचन में पढ़ेंगे 3:9 में, प्रगटीकरण 3:9 में हम पढ़ेंगे। The open door may also speak of the opportunity to enter God's kingdom in contrast with exclusion from the synagogue. इस वचन को मैं फिर से रिफर करूंगी, आप इस वचन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर यह कहा गया है, एक द्वार खोलने का मतलब ये भी है कि फिलाडेल्फिया के क्रिश्चियंस को सिनेगॉग, जो जूइश वर्शिप है, सिनेगॉग जो है, उसमें जाकर आराधना करने से वंचित किया गया था। They were restricted. Why they were restricted, we will study further. और इसका मतलब ये भी है, जब परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिया तो कोई भी वो द्वार उनके लिए बंद नहीं कर सका, चाहे सिनेगॉग हो या जूइश वर्शिप का जो स्थान हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब एक ही बार उनके लिए द्वार खोल दिया गया तो कोई भी उसे रोक नहीं सका। हालेलुया। नो वन कैन शट इट। वचन ये कहता है कि जो यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया गया हो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग दैट कैन कीप देम फ्रॉम देयर एक्सेस टू दिस डोर। कोई भी आपको और मुझे इस साल प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को प्रचार करने से रोक नहीं सकता। ये वचन आपके हृदय में बहुत गहराई से इसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि इस साल और आने वाले समय में जो द्वार यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए खोला गया है एडोनाई किंगडम प्लांटर्स के माध्यम से, इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। Since Jesus, He opens and no one shuts, and shuts and no one opens, Revelation 3:7, He has the authority to keep His door open for the Christians in Philadelphia, also for the Christians in India. Hallelujah. ये सभी मसीहों के लिए है, सिर्फ एक ही सेक्ट के लिए या ग्रुप के लिए नहीं। ये प्रगटीकरण का वचन जो आज हम स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारे लिए है। हालेलुया। David could not shut or open the kingdom of Israel. ये दाविद के बारे में यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि दाविद जो राजा था इजराइल का उस समय पर, उसके पास ये अधिकार दिया गया था। He was not bound to leave the kingdom even to his eldest son. He could choose whom he pleased to succeed. एक राजा होने के नाते उसके पास अधिकार था, जो उसको उसके मन को भाए है वो कर सकता है। तो स्वर्गीय सेनाधीश प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। The kingdom of the gospel and the kingdom of heaven are at the disposal of Christ. प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पे परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का शुभ संदेश दिया गया है। Hallelujah. So God opens doors for ministers and ministries today. Hallelujah. आप सभी लोग एक छोटी कलीसिया हो,
हम क्यों ना भले ही ऑनलाइन मिनिस्ट्री में हो, ये कोई मायने नहीं रखता, और जो कोई भी इस वचन के द्वारा स्वीकार कर रहा है वो अति धन्य है। क्योंकि जैसे आप प्रगटीकरण का पुस्तक खोलते हो, यही एक किताब है जो कहता है ब्लेसेड इज द वन हु रीड्स दिस बुक। ये किसी भी किताब में लिखा नहीं गया है, पर सिर्फ प्रगटीकरण की किताब में लिखा गया है। जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो आशीषित है। हालेलुया। सो अपने आप को आप आशीषित समझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण ही हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू जीसस। God opens doors for ministry and ministers today. I would like to bear witness that I have proved this Philadelphians promise of the open door through years of ministry. ये एक व्यक्ति की साक्षी है, एच मॉरिस, उन्होंने लिखा है, I would like to bear witness that I have proved this Philadelphian promise of the open door through years of ministry and it has never failed. ये साक्षी यहाँ पर एच मॉरिस जो कमेंटेटर है ये दे रहे हैं। Promotion does not come from the south, east or west, but from God. जो भी कोई प्रमोशन का कार्य होता है इस पृथ्वी पर, वो कहाँ से आता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी मिनिस्ट्री को बढ़ते हुए देखते हैं, तब हमें सिर्फ जानना है कि प्रभु का हाथ उनके कलीसियों पर है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम द साउथ, ईस्ट और वेस्ट, बट फ्रॉम गॉड, एंड इफ वी कमिट आवर वे unto him and trust him, he will bring it to pass. God's man is not dependent on religious talent and his ministry, but his hands are, the hands of God are always on the ministry. Hallelujah. तो हमें ये जानना जरूरी है, कभी भी कोई भी चीज की बढ़ोतरी हम देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के यीशु मसीह के आशीष के कारण ही हुआ है। हालेलुया। Because when Jesus has opened the door, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब द्वार खोला, वो आशीष के कारण ही हुआ है। It gets the glory, neither wealth nor influence, neither promotional schemes nor any eloquence on the pulpit. कुछ अच्छा वार्तालाप करने से या धन के कारण या कोई प्रमोशनल स्कीम्स के कारण कोई भी कलीसिया या मिनिस्ट्री नहीं बढ़ती। वो सिर्फ और सिर्फ जब यीशु मसीह के द्वारा ये द्वार खोला जाता है तभी बढ़ती है। The Lord alone has opened the door. The Lord alone giveth the increase. Hallelujah. जब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ हमें जब ये द्वार को खोलकर हमें आशीषित घोषित करते हैं, तभी हम कोई सेविका करने के काबिल बनते हैं। इसके अलावा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। आई होप यू ऑल आर रिसीविंग इट। और यू हैव लिटिल स्ट्रेंथ। यहाँ पे फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में क्या कहा जा रहा है? दैट यू हैव लिटिल स्ट्रेंथ, तुम बहुत छोटी कलीसिया हो। इस वचन में लिखा गया है कि द टर्म लिटिल स्ट्रेंथ डज नॉट इम्प्लाई वीकनेस। जब तुम कमजोर हो, इसका मतलब शारीरिक कमजोरी के बारे में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी हर कमी घटी ने तुम्हें ये एक अपबिल्डिंग किया या फिर तुम्हें बांधा इस वजह से कि तुमने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखा। They were weak enough to be strong in the Lord. We can be too strong or too big or too sure of ourselves for God to really use us. The church in Philadelphia had the poverty of spirit to know they really needed God's strength. आज कितने लोग हाथ उठाकर ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तो फिजिकल से बहुत स्ट्रांग हूँ, पर मेरे अंतःकरण से, मेरे आत्मा से मैं कमजोर हूँ, और इसी क्षण में आपकी ताकत को चाहता हूँ या चाहती हूँ। All those who are in that situation, believe me, beloved, you're going to be strengthened by God every day. It's no matter of great strength. It's not the ability, but your greater dependability on the Lord alone. आज जो हर कोई हम दुनिया में देखते हैं अपने ताकत के हिसाब से जीना चाहते हैं, बट जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो कंप्लीट डिपेंडेंसी परमेश्वर पर दिखाते हैं। हालेलुया। A little strength faithfully used means more than much strength. जो भी कमजोरियों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर भरोसा कर जीता है, वो अति आशीषित कहलाता है। हालेलुया। इसके बारे में अगर हम अधिक जानना चाहते हैं तो पौलुस जो यहाँ पर अपोस्टल पॉल जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज अ ग्रेट एग्जांपल दैट डायनामिक ऑफ हिज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। God's strength was made evident in his weakness. दूसरा कोरिन्थियोस 12 के 7 और 10 में हम पढ़ेंगे किस तरह पौलुस के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश।
And least I should be exalted above measure by the abundance of the revelation. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reapproaches, in needs, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. हालेलुया। ये सबसे बड़ा उदाहरण जो है हम यहाँ पर पौल के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने वीकनेस में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर और एक प्रेरणा के स्वरूप हमें इस वचन में सीखने को मिलता है। हालेलुया। It is a great example of Apostle Paul that in his weaknesses he exalted God. Hallelujah. And let's see what does the word say now. Have kept my word and have not denied my name. हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को कभी भी दुत्कारा नहीं. The church in Philadelphia was faithful to Jesus and his word. The idea behind have not denied my name is not only that they expressed their loyalty or commitment to Jesus, but that they lived in a way that was faithful to the name and character of Jesus. Hallelujah. I release this prophetic word over Adonai Kingdom Planters ministry, that this ministry would not only be faithful to Jesus and to his word, but we will live with the character of Jesus. Hallelujah. Each one of us, including me, that we will live in a way that was faithful to the name and character of Jesus. Hallelujah. Some churches claim great faithfulness of the Lord, but eventually they land up denying his name. That is not the character which we have to look forward. We have to look upon to the Lord, that he will fill us with that strength and with that character, that whenever people see, they will reflect the life of Jesus Christ in our lives. Hallelujah. They represent the manner and style of Jesus as something very different from what the Bible shows, right? So let's see the features of the church in Philadelphia. हम फिलाडेल्फिया के कलीसिया की विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेंजलिस्टिक अपॉर्चुनिटी. वचन में ये लिखा गया है, I have set before you an open door. मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है. ये सेविकाई के लिए, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने जो द्वार खोला है उसे हमें जानना है. दूसरी विशेषता है ये है रिलायंस ऑन गॉड. यू हैव अ लिटिल स्ट्रेंथ. तुम्हारी कमी घटियों में भी, तुम्हारे एक दुर्बलता की परिस्थिति में भी, कम शक्ति होने के बावजूद भी तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया. Reliance on God in 2022 is going to be evidently seen in every area of our life. Hallelujah. And we should be proud that we are trusting on God alone. It's not a matter of shame or a disgrace, but it is a matter of joy and a blessing that we are dependent on God 100%. Hallelujah. Not on our own plans and agenda, but according to the plan and purposes of God. Hallelujah. Faithfulness to Jesus. वचन में ये लिखा गया है, have kept my word and have not denied my name. इसका मतलब ये है कि हर एक परिस्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वासी थे. हालेलुया. Let's read further. Yet Jesus was completely pleased with this church. He had nothing negative to say to this church at Philadelphia. बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिपोर्ट प्रभु यीशु मसीह के खुद के मुख से दिया गया है, that he did not have anything negative about this church. Hallelujah. We would be, waiting for this kind of a remark from our Lord Jesus Christ. Hallelujah. The church of Philadelphia is commended for keeping the word of the Lord and not denying his name. Again and again the word says, it did not deny my name. Hallelujah. Success in Christian work is not to be measured by any other standard of achievement. It is not rise in the ecclesiastic position. It is not the number of new buildings which have been built through a man's ministry. It is not even the crowds that flock to listen to any human voice. All these things are frequently used as, an instruments of success, but they are earthly and not heavenly measures, beloved. यहाँ पर वचन ये कहता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया छोटी और कमजोर मानी जाती थी, पर उसकी विशेषताएं बड़ी अधिक थी. हालेलुया. Compared to all these 6 churches, Philadelphia church is outstanding.
हालेलुया। हम किसी भी कलीसिया की अगर हम उसके सक्सेस के बारे में बात किए जाए तो हम देखते हैं कितनी भीड़ है इस कलीसिया में, कितने सारे नए बिल्डिंग्स बनाए गए इस कलीसिया में। ये सारी चीजें जो है ये पृथ्वी के लिए काफी है, ये अर्थली मेजर्स है, ये अर्थली मेजर्स है कि देखी जाए कि इनकी सक्सेस कितनी है। पर द गुड न्यूज इज कि हमारी कलीसिया में कोई एक इंसान क्यों ना हो, पर अगर वो एक इंसान परमेश्वर को वचन को अतिग्रहण कर कर उसके वचन के अनुसार चले तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा। हालेलुया। इट इज अ ग्रेटर रिवॉर्ड फॉर Adonai Kingdom Planters Ministry. Maybe 10-15 people are coming today, that doesn't matter at all, because the measure of success is depending on the heavenly measure. It is only looking at the quality of the people. Hallelujah. And I believe from this ministry maximum leaders are going to be raised. All of those people who were present last year during the first anniversary of Adonai Kingdom Planters, if you remember, the prophetic word released was that leaders are going to be raised from this ministry. Soon, when we are completing this message, you will get to know what the heart of God is for you and me. Hallelujah. Let's read verse 9 to 10. What Jesus will do for the Christians of Philadelphia. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासी है फिलाडेल्फिया के कलीसिया में, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं इस वचन में हम पढ़ेंगे. I will read in English first. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not but lie. Indeed, will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you, because you have kept my commands to preserve. I will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Hallelujah. Let's read in Hindi 9 to 10. Thank you, Jesus. यस, देखो मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलते हैं, इसके लिए बाध्य करूँगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यही जानने की मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बन रहे, इसलिए मैं कभी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उनके निवासियों की परीक्षा लेगी। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। हमने पहले वचन में यही देखा था कि अगर एक द्वार यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया जाए तो वो बंद नहीं किया जा सकता। एक सेकंड रेफरेंस में हमने ये भी पढ़ा था कि इस सिनेगॉग के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है कि यहूदी लोग जो स्थान पर आराधना करते थे, उस स्पेसिफिक स्थान के यहूदी लोग जो कि कभी भी यहूदी के समान ना रहे, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है इस सिनेगॉग को शैतान का सिनेगॉग कहा गया है. दिस इज अ वेरी नेगेटिव रिमार्क व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jewish and are not. जो खुद को यहूदी तो कहते थे पर यहूदी के चाल चलन के अनुसार कभी भी नहीं थे. आगे पढ़ते ही इसका मतलब क्या है? I will make those of the synagogue of Satan. इसका मतलब ये है कि जो विश्वासी जो मसीह फिलाडेल्फिया में जो थे वो परसिक्यूट किए जाते थे. किसके लोगों के द्वारा? जूइश पीपल के द्वारा. यहाँ पर यहूदी जो है, यहाँ हम पूरे यहूदी समाज के बारे में यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ उस यहूदी समाज के बारे में कहा जा रहा है कि जो फिलाडेल्फिया के शहर में थे और जो फिलाडेल्फिया के विश्वासियों को ताड़ना देते थे. However, these persecuting Jews were Jews in the name only. सिर्फ नाम के खातिर वो यहूदी थे, पर अगर उनके चाल चलन को और उनके चरित्र को देखा जाए तो वो यहूदी के समान कभी भी नहीं थे. In fact, they had no spiritual connection to Abraham or to the people of faith. इसलिए उन्हें शैतान की कलीसिया कहा गया है. हालेलुया. यहाँ पर हम वचन में ये सीखते हैं कि जो यहूदी इस जगह पर थे, फिलाडेल्फिया के शहर में थे, और जो फिलाडेल्फिया के जो मसीह थे उनको ताड़ना देते थे, कहीं पर भी उनका आत्मिक जो एक रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं था. सिर्फ नाम के खातिर वो यहूदी थे. इन दिस जीसस डिड नॉट स्पीक अगेंस्ट ऑल जूइश पीपल. इस वचन में सारे जो यहूदी समाज के बारे में नहीं कहा गया है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर रहने वाले जो यहूदी, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर यहूदी के समान नहीं रहते,
उनको शैतान की कलीसिया बताया गया है। It would be entirely long to speak on the Jewish people as whole as the synagogue of Satan, but those who say they are Jews and are not, यहाँ पर फिर से यहाँ पर वचन में ये कहा गया है, ये सारे यहूदियों के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिलाडेल्फिया के शहर में जो यहूदी फिलाडेल्फिया के मसीहों पर ताड़ना करते थे, उन्हीं के बारे में कहा गया है। Jesus spoke of the specific group of Jewish people in Philadelphia who persecuted the Christians during that period. उस समय पर फिलाडेल्फिया में ये जो समूह था यहूदी लोगों का, जिन्होंने उस समय के मसीहों को ताड़ना दी, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा गया है। तो सारे यहूदियों के बारे में ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और इस जगह को उन्होंने शैतान की आराधना करने वाला स्थल को कहा गया है। तो आगे वचन में पढ़ते हैं, I will make them and come and worship your feet। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं फिलाडेल्फिया के चर्च के बारे में, कि ये लोग जो है आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। In this, Jesus promised that he would vindicate his people and make sure that their persecutors recognize they were wrong। परमेश्वर ऐसा समय लाने वाले हैं, जो भी मसीह लोगों की ताड़ना करते हैं, उनका आने वाला समय कैसे होने वाला है, ये इस वचन से हम पढ़ेंगे। They were wrong and that Jesus and his followers were right। ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह की सेविकाएं करने वाले जो विश्वासी है, जो बिलीवर्स है, ये हमेशा ही सत्य रहेंगे, क्योंकि ये वचन का पालन करता है। द आइडिया ऑफ विंडिकेशन, विंडिकेशन का मतलब ये है क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। जो भी कोई निरंतर इल्जाम लगाते हैं विश्वासियों पर, इन सारी चीजों का जो युद्ध है प्रभु यीशु मसीह लड़ने वाले हैं। क्योंकि जो सेल्फ राइचियसनेस है, जो एक नीतिमत्ता की जिंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। God promised that the church in Philadelphia would be vindicated before their persecutors। जो भी कोई ताड़ना दे रहा है आज कलीसिया को, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर वचन लिखा है, they will come and worship before your feet। उनकी परिस्थिति ऐसे होने वाली है कि वो आकर आपके चरणों में गिरकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया। God promised Israel that Gentiles would honor them and acknowledge their God। आइजिया 45:14 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया था इजरायली लोगों को कि वो परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इस वचन के अनुसार हम ये पढ़ते हैं कि God promised Israel that Gentiles would honor and them and acknowledge their God। क्योंकि इजरायली लोगों ने मसीह को स्वीकारा नहीं, इसीलिए उद्धार जो है विधर्मियों के पास आया। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं 1 Corinthians 14:24-25 speaks of unbelievers falling down in the midst of Christian to worship God। This establishes that it wasn't Christian who were being worshipped, but God was worshipped in the presence of Christians। Hallelujah। Let's see what does the word say। And to know that I have loved you। यहाँ पर वचन ये कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इनसे प्रेम रखा। Clearly the word says, I have loved you। Hallelujah। Am I loved you? As those who were once their enemy worshipped alongside them, they were destroyed as enemies। They now knew that Jesus had loved these people they once persecuted। जिन किसी ने भी मसीहों की ताड़ना की है, एक दिन तो उनकी जिंदगी में जरूर आएगा जब उनको याद दिलाया जाएगा कि उन्होंने जो मसीह पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने परसिक्यूट किया गया था। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, I have loved you। The best way to destroy the enemies of the gospel is to pray that God would change them into friends। सबसे अधिक तरीके से अगर हमें ताड़ना देने वाले या मसीहों की कलीसिया को ताड़ना देने वाले अगर हमारे इर्द गिर्द है, सबसे अच्छा कार्य हम यही कर सकते हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वो मसीही बन जाए, ताकि वो हमारे साथ शत्रुता में नहीं बल्कि एक मित्रता में बन जाए। हालेलुया। I will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world। यहाँ पर वचन एक बहुत बड़ा प्रॉमिस इस किताब में हमें मिलता है कि I will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world। Jesus also promised them protection from the hour of trial coming on the whole world। सिर्फ फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ही ये वचन दिया गया है कि आने वाले समय जो परीक्षा का समय होगा, ताड़ना का समय होगा, पर सुरक्षता इस कलीसिया पर ऑलरेडी बोल दी गई है। हालेलुया। सबसे बड़ा ये जो प्रॉमिस हमें इस वचन में मिलता है।
Let's see what does the word of God say. Most of the Bible scholars see this hour of trial as a prophetic reference to the messianic wars, the great tribulation which precedes Jesus' earthly kingdom. Jesus promised to keep these Christians from the hour of trial. Hallelujah. यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं कि आने वाले समय जब यीशु मसीह का आगमन निकट है, उस समय जब ताड़नाएं बहुत अधिक तरीके से जो शुरू होने वाली है, उस समय फिलाडेल्फिया कलीसिया को एक बहुत बड़ा वचन मिला है कि वो वचन ये है, उस समय ताड़ना का जो समय आएगा, उस वक्त परमेश्वर का जो अति अति मेजर, लाइक अ ग्रेटर मेजर, बहुत बड़े स्वरूप से इनके लिए ये जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हालेलुया। सो वचन ये कहता है टू टेस्ट दोज हु ड्वेल ऑन दी अर्थ। वचन में ये कहा गया है उस समय पर किसकी परीक्षा ली जाएगी। द टेस्ट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट दोज हु ड्वेल ऑन दी अर्थ। उस समय पर जो लोग छूट जाएंगे इस पृथ्वी पर, उनको इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। This phrase is used 9 times in the book of Revelation and it speaks about those who are not saved in Jesus. जिस किसी ने भी यीशु मसीह में उद्धार नहीं पाया। प्रकटीकरण की किताब 17वां अध्याय और 8वें वचन में हम फिर से इस बात को पढ़ते हैं। हालेलुया। So all those who dwell on the earth will marvel, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world. This test is for the unbelievers and not for the Christians. So ये जो परीक्षा का समय आएगा अंत के दिनों में, यहाँ पर वचन ये कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर कर उसे उद्धार करता स्वीकार कर लिया, उनके लिए ताड़ना नहीं, बल्कि जिन किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनको इस परीक्षा से गुजरना होगा। Those who dwell on the earth refers to the believers but not, it refers to the unbelievers and not to the believers. जो कोई भी छूटे जाएंगे, जिन किसी का भी नाम जो स्वर्गीय किताब में लिखा नहीं जाएगा, उन सभी को इस ताड़ना से होकर गुजरना पड़ेगा। क्रिश्चियंस आर डिफरेंट। जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो बहुत ही अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो इस पृथ्वी पर रहते जरूर है, पर उनका जो निवास स्थान है वो स्वर्ग है। हालेलुया। We have been seated in heavenly places in Jesus. We do not dwell on the earth, for our life is hidden in Jesus. Colossians 3:3 में लिखा गया है that we no longer live, but our lives are hidden in Jesus Christ. Hallelujah. Those who believe the church will be here on earth during the time of great tribulation focus on Jesus' command to preserve and say the context demands seeing this as a protection that enables the faithful to preserve in the period. जो कोई भी विश्वासी इस आने वाले ग्रेटर ट्रिब्यूलेशन में प्रभु यीशु मसीह के दिए वाले हर एक नियम को प्रिजर्व करके रखेगा, वो सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। Those who believe that Jesus will come for his church before this great time of tribulation know that protection is promised before the very hour of trial. Hallelujah. How many of you are happy? Those who believe that Jesus will come for his church before his time of great tribulation, note the protection is promised from the very hour of trial, not just the trial itself. Before the hour of trial only, greater protection is over the churches who believe that Jesus Christ is their Lord and Savior. Hallelujah. In addition, the ones tested by this hour of trial are not primarily believers, but those who dwell on the earth, whose home is this earth, who are not citizens of heaven. जो ये समझते हैं कि ये धरती, ये पृथ्वी ही मेरा निवास स्थान है, मैं यहाँ पर ही जिया हूँ, यहाँ पर ही कंप्लीशन होने वाला है, उनके लिए ये विश्वासी उन लोगों के लिए ये प्रॉमिस नहीं है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि पृथ्वी पर तो सिर्फ थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पर हूँ, पर मेरा निवास स्थान जो है वो स्वर्ग है, ये उनके लिए है। राइट। व्हाट जीसस वांट्स द फिलाडेल्फिया टू डू। 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। हालेलुया। और इसमें मैसेज क्या दे रहे हैं, हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Hallelujah. हम हिंदी में पढ़ेंगे 11वां वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित न कर पाए।
हालेलुया। तुम्हारे मुकुट से वंचित ना कर पाए, इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान के लिए एक मुकुट है। आपका मुकुट मैं नहीं ले सकती, या मेरा मुकुट आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने जिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। Behold, I am coming quickly. First, the church at Philadelphia must remember that Jesus is coming quickly. Hallelujah. सबसे पहले एडोनाई किंगडम प्लांटर्स मिनिस्ट्री की कलीसिया ये जान ले कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है। हालेलुया। अब तो रिवाइवल शुरू होने वाला है। आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरह से रिवाइवल आ रहा है अपने भारत देश में भी। हालेलुया। We all are going to testify the greater revival coming in this decade, and they must prepare for his coming. हमें तैयारी तो जरूर करनी है। हालेलुया। अगर हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, अगले दिन ही हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। पर तो ये सेनाधीश राजाओं के राजा यीशु के बारे में कहा जा रहा है कि उसका आगमन निकट है। आई एम कमिंग क्विकली। The expression quickly is to be understood as something which is sudden and unexpected. किसी को भी समय के बारे में पता नहीं। यीशु मसीह खुद स्वयं यह कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे आगमन का समय क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पिता जानता है। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इट इज क्विकली, सडन, अनएक्सपेक्टेड, जब किसी ने भी इसके बारे में सोचा भी ना होगा। हालेलुया। होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव। जो भी आपके पास है उसको प्रिजर्व करके रखिए, ये तो आपका विश्वास ही है। The church at Philadelphia must not depart from its solid foundation as described in Revelation 3:8. हमने तीसरे अध्याय के 8वें वचन में 3 चीजें पढ़ी थी। फिर से हम फ्लैशबैक में जाएंगे। इवेंजलिस्टिक अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा था। आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर के बारे में पढ़ा था। रिलायंस ऑन गॉड। You have little strength, still you have trusted and depended on God. ये चीजों को प्रिजर्व करने के बारे में कलीसिया को कहा जा रहा है। Faithfulness to Jesus, have kept my word and have not denied my name. इन 3 चीजों के बारे में फिर से फिलाडेल्फिया की जो विशेषताएं है, इस चीज को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट होने के नाते क्विकली का मतलब यह है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। तो इन 3 चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। सबसे पहले तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा गया है, और दूसरा तुम्हारे कमी घटी और कमजोरियों में भी तुमने प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हुए उसको अपनी शक्ति माना, और तीसरा तुम्हारी विश्वास योग्यता, तुमने कभी भी यीशु मसीह के नाम को दुत्कारा नहीं, बल्कि हर समय में उसके नाम को पकड़ कर रहा। हालेलुया। These things can and must continue among the church in Philadelphia. I would say these things must continue among the church in Adonai Kingdom Planters Ministry, but it will only happen as you hold fast. आप उसको प्रिजर्व कर कर उसको पकड़ कर रखेंगे तो उसमें सक्सेसफुल बनेंगे। That no one may take your crown. If they fail to hold fast, their crown might be given to another. The idea is not that it might be stolen by another, but given. अगर हम विश्वास ही नहीं रहे तो हमारा जो मुकुट है वो किसी और को दिया जाएगा। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा मुकुट किसी और को दिया जाए, बल्कि हर एक जन का जो मुकुट रखा गया है वो उन्हीं को मिले। हालेलुया। दिस वाज नॉट अ क्राउन ऑफ रॉयल्टी गिवन बिकॉज ऑफ रॉयल बर्थ। ये कोई भी अगर मसीह परिवार में पैदा हुआ है या कोई रॉयल कुटुंब में पैदा हुए, उनके लिए रखा गया हुआ ये जो क्राउन वो उनके लिए नहीं है, ये मुकुट उनके लिए नहीं है। दिस वॉज अ क्राउन ऑफ विक्ट्री। ये विजय घोषित किया जाने वाला मुकुट है। जीसस एनकरेजेस सेंट्स टू फिनिश देयर कोर्स विद विक्ट्री, टू प्ले द सेकंड हाफ जस्ट एज स्ट्रांगली एज दे हैव प्लेड द फर्स्ट हाफ। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हम इस जिंदगी की जो इस युद्ध को है हम जीत सकते हैं। हालेलुया। Never forget that the man most likely to steal your crown is yourself. वचन ये कहता है कि कोई और मेरे मुकुट को नहीं छीनेगा, बल्कि मुझ में जो कुछ कमी घटिया है वो ही मेरे लिए हिंड्रेंस बन सकते हैं। कैसे? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. नीति सूत्र 4 के 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमारे मन से निकलने वाली
हर एक एंजाइटी या दुख भरी चीजें या हर कोई परिस्थिति में कमजोर करने वाली चीजें ही हमें इस मुकुट से दूर कर सकते हैं। यू आर इन नो ग्रेटर डेंजर फ्रॉम एनी वन और एनीथिंग देन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आपको किसी लोगों से या किसी चीज से भय नहीं, बल्कि अपने आप को जांचना जरूरी है, ताकि मैं विश्वासी रहते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए इस मुकुट को मैं हासिल करने पाऊं। हालेलुया। अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, 12 वचन हम पढ़ेंगे। ही हु ओवरकम्स आई विल मेक हिम अ पिलर इन द टेम्पल ऑफ माय गॉड, he shall go out no more, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. Hallelujah। 12वां अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस। मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वो फिर कभी उससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर ने यहाँ से स्वर्ग से उतारने वाला है, और अपना नया नाम जिस उस पर अंकित करूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबसे अधिक एक प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें यहाँ पर दिया है। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर ने ये वचन बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। वचन ये कहता है, he who overcomes I will make him a pillar। Overcomers were told that they would be as a pillar in the temple of my God। Pillars were pictures of strength, stability and dignified beauty। अगर आप पुराने जो कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर को देखते हैं तो बड़े बड़े स्तंभों पर इमारती बनाए जाते थे। All the monuments were created on huge pillars। Pillars are the foundation of the church, beloved। So what is Lord writing here? He who overcomes I will make him a pillar in the temple of my God। आज आप और मैं परमेश्वर की आंखों में ये पिलर्स है। Hallelujah। Overcomers were told that they would be as a pillar in the temple of my God। The ancient city of Philadelphia suffered from frequent earthquakes। इसीलिए हमने इतिहास को पढ़ा था। हमने फिलाडेल्फिया के इतिहास पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि ये जो शहर है इसमें बहुत अधिक तरीके से भूकंप आते थे। When a building collapsed in an earthquake, often all that remained standing were huge pillars। अगर भूकंप में कुछ गिर जाता है तो पहले उसका फाउंडेशन ही गिरता है। राइट। यही फिलाडेल्फिया की विशेषताएं थी। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जीसस ऑफर्स अस द सेम स्ट्रेंथ टू रिमेन स्टैंडिंग इन हिम व्हेन एवरीथिंग अराउंड क्रम्बल्स। हमने देखा था 2020 में जब बहुत बड़ा पैंडेमिक आया तो पूरे दुनिया में सारी चीज क्रम्बल हो गई। एवरीथिंग वाज फॉलन। पर जो विश्वासी रहे वो ओवरकम बने। दे वर मोर देन कॉन्करर्स, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। वो 20,000 2020 में ही था कि जब हमारी जो सेविकाई का आरंभ हुआ था। हालेलुया। The pillar holds up the building। The only thing supporting the pillar is the foundation। True pillar in the church supports the church। They look to Jesus as their support and foundation। हमने फिलाडेल्फिया का इतिहास इसलिए पढ़ा क्योंकि इस जगह पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते थे और परमेश्वर उनके लिए ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक पिलर बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि उनकी कलीसिया की जो कमजोरियां यीशु मसीह जानते थे, और इस पिलर को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिलर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक होते ही जब सब कुछ क्रम्बल हो जाता था, फिर भी ये लोग उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर रखते थे। हालेलुया। The pillar holds up the building। The only thing supporting the pillar is the foundation। True pillars in the church support the church। हालेलुया। आज आप और मैं कलीसिया के पिलर बनने वाले हैं। You and I are the pillars of the church। The body of Christ needs such strong pillars to sustain the coming days। Hallelujah। He shall go out no more। The overcomer would have a place of permanence and stability with God, in contrast to an uncertain place in this world। जो कोई भी विश्वासी है उनके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए दिया जाएगा। हालेलुया।
The citizens of Philadelphia lived an unsettled life. वो इस तरह का जीवन जीते थे कि जिसे कि वो पिलग्रिम्स हो। उन्होंने कभी भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर बांध कर रहने की नहीं सोची, क्योंकि जोग्राफिकली वहां पर भूकंप आते थे। Whenever the earthquake tremors came, they came often. The people of Philadelphia fled from the city into the open places, right? जब भी भूकंप आता था तो उनकी सारी चीजों को छोड़कर वो खुले मैदान में भागते थे। इस तरह की जिंदगी वो जीते थे। हालेलुया। ये दर्शाता है कि हम इस पृथ्वी पर पिलग्रिम्स के समान हैं। यहाँ पर परमानेंट घर बांध कर रहने के लिए हम नहीं आए, बल्कि स्वर्ग की राज्य की ओर देखकर उसमें निवास करने की योजना के साथ हम आए हैं। Then when the earth was quiet again, they would return back to their houses. Hallelujah. In their fear, the people of Philadelphia were always going out and coming in. यहाँ पर ये दिखा गया है, जैसे ही भूकंप आता वो अपने घरों को छोड़कर खुले मैदान में जाते, फिर से सब कुछ ठीक होता तो फिर से पुनर्स्थापना की जिंदगी जीने की कोशिश करते। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए ये कलीसिया बड़ी है। Hallelujah. I don't know how many of you can relate that in the ups and downs of my life, when I trusted in the name of my Lord and my Savior Jesus Christ, my God restored everything back to me. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर रिस्टोरेशन का खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस और रिवॉर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? I will write on him the name of my God. I will write on him my new name. एक नया नाम दिया जाएगा। The overcomer also received many names of God. The New Jerusalem and the new name of Jesus. These names are marks of identification because they show who we belong to. हम पर जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा हम उन्हीं के हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि उस पिलर पर परमेश्वर एक नया नाम लिखेंगे। Hallelujah. They are marks of intimacy because they show we are privileged to know him ways others are not. ये सबसे बड़ा एक आशीष का कारण है कि दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और हमारे लिए दिए गए प्रॉमिसेस क्या है, पर हम जानते हैं क्योंकि हम पर नया नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। This works together well with the image of a pillar. In the ancient world, having a special inscribed pillar added to one of the temples, something honored a faithful city. Hallelujah. उस समय पर एक पिलर पर किसी का नाम लिखे जाने वाला कार्य अत्यधिक एक ऑनरेबल चीज माना जाता था। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि हम चर्च के पिलर्स माने जाएंगे और हम पर एक नया नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। लास्ट वचन में मैं आ गई हूँ। 13वां वचन ये कहता है, He who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिन किसी के पास भी कान है वो सुने। हम हिंदी में पढ़ेंगे 13वीं आयत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिन किसी के पास भी कान है वो सुन ले कि आत्मा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है। He who has an ear, let him hear. We all want to hear the praise and encouragement Jesus gave to the church at Philadelphia. If we will be like this church, we must stay on their foundations. अगर हमें फिलाडेल्फिया कलीसिया की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़कर उस तरह से हमें रहना है, तो हमें हर चीज जो एक फाउंडेशन के बारे में हमने आज पढ़ा उसके अनुसार रहना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर और यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया। We must also depend on the source of strength, which was only and only Jesus Christ and not on themselves. आज मैं यही एनकरेज करूंगी एडोनाई किंगडम प्लांटर्स के हर एक सदस्यों को कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा करें, निर्भर रहें, अपने खुद के सोच विचार और हमारी योजनाओं पर नहीं। हालेलुया। इसके आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़ा एनकरेजिंग स्क्रिप्चर है। हालेलुया।
I hope you all are edified and blessed by today's verse. Let's go to the book of Titus, the book of Titus, chapter 1, verse 5. Hallelujah. टाइटस की किताब पहला अध्याय 5वां वचन. I'm reading in English. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Let's read in Hindi. यस, मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसियों का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो. हालेलुया. ये सबसे बड़ा एक गुड न्यूज है कि जब हम 7 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर में थे, परमेश्वर ने हमें ये मैंडेट दिया. जैसे आप सब जानते हैं कि एडोनाई किंगडम प्लांटर्स अभी फिलहाल के लिए तो एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, पर हम सारे शहरों में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं गोवा से ज्वाइन किए हैं, कहीं बैंगलोर से है, कहीं पुणे से है, कहीं कैलिफोर्निया से है, अलग अलग जगहों से हम जुड़े हुए हैं. परमेश्वर ने हमें ये मैंडेट दिया टाइटस की किताब पहले अध्याय 5वें वचन में, कि यहाँ पर वचन क्लीनली ये कह रहा है कि For this reason I left you in Crete. Crete एक जगह है, that you should set in order the things that are lacking. Sister, can you read in Hindi once again, please? 1 minute. Yes. मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसियों का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो. हालेलुया. तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैंडेट है आप लोगों पर. आप लोग जो एडोनाई किंगडम प्लांटर के साथ एक विश्वासी होने के नाते कंसिस्टेंटली डे 1 से काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं. दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि परमेश्वर आप जिस सिटी में है, आप जिस जगह से जुड़े हुए हमारे साथ, वहां पर एल्डर्स को अपॉइंट करना चाह रहे हैं. तो इसके लिए हम बहुत बड़े एक प्लान ऑन पर्पस में आ रहे हैं. इसका मतलब ये है परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए, कलीसिया में जो भी कुछ कमी घटिया है, एवरीथिंग व्हिच इज लैकिंग हैज टू बी सेट इन ऑर्डर. हालेलुया. एंड दैट इज अ कमांड. पिछले साल जब हमें ये सितंबर, जून, जुलाई के समय जब हम उपवास प्रार्थना में थे, तब हमें वचन मिला. हमें 4 महीने लग गए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि तब समय नहीं आया था कि हम आपसे ये वचन को बांट सके, क्योंकि आत्मिक तरीके से आपकी बढ़ोतरी अभी हो चुकी है. और आज जो दूसरा दिन है इस नए साल का, आज इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. हालेलुया. इसका वचन का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हर एक घर में वचन को पढ़ा जाएगा, एक इंसान को नियुक्त किया जाएगा ताकि वो इस चीज का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कलीसिया, छोटी कलीसिया के समान कार्य में आए. ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा, ये हमारी प्रार्थना होने के बाद हम आपसे इस चीज को बांटेंगे. हालेलुया. तो इन 2 चीजों को हम आज सीखे हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और हमारा आज के समय में एडोनाई किंगडम प्लांटर्स मिनिस्ट्री की कलीसिया का क्या रोल होगा. और टाइटस के पहले किताब 5वें वचन में ये कहा गया है कि हर एक सिटी में एल्डर्स को अपॉइंट किया जाए. हालेलुया. और स्तोत्र संहिता 110 की 3 आयत में हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि आने वाले समय में किसी को भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. वो खुद भी वॉलंटरीली दे आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन सर्विंग द लॉर्ड, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसे होने वाली है. कई कबार हम विश्वासी होने के नाते एक दूसरे को एनकरेज करते थे कि आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, या किसी कलीसिया से जुड़ जाइए, या कहीं ना कहीं परमेश्वर की सेविकाई से जुड़ जाइए. पर आने वाले समय जो 2022 में हम आ चुके हैं, ये ऐसा साल होगा जहां पर हर एक प्रत्येक इंसान कलीसिया की सेवाओं में, यीशु मसीह की सेविकाओं में खुद वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना चाहेगा.
ये वचन हमें पिछले साल ही परमेश्वर ने प्रोफेटिक तरीके से दिया था। हालेलुया। परमेश्वर हर बात को पहले से ही जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा समय योग्य है इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालेलुया। Let's close in prayer because we have a practical implementation after the service is over. Hallelujah. धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस वचन के लिए कि आपने हमें फिलाडेल्फिया चर्च के विशेषताओं के बारे में बताकर हमारे फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। प्यारे परमेश्वर, आपका रिपोर्ट इस चर्च के बारे में सर्वश्रेष्ठ है। खुदावन परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आने वाले समय एडोनाई किंगडम प्लांटर्स मिनिस्ट्री में जो कोई भी लोग जुड़े परमेश्वर, वो इन सारे आशीषों को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। टाइटस की किताब पहला 5वें वचन के अनुसार हमें इस सेविकाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्ञान और बुद्धि दीजिए। प्यारे परमेश्वर, आज सभी लोग हमारे सेविकाई में जो जुड़े हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से हम आशीषित कहते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस you immensely. Thank you, Jesus. Victory in the blood of Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. God